Hello everyone and welcome to this new video. In this video we are going to talk about DU B.Ed crash course for the subject history, and we are going to cover very important topics, and you will get the link of whole playlist in the description. Okay, so please subscribe to the channel if you have not done yet, so that you can get all the latest videos whenever I upload them. Okay, so we will upload the videos in faster manner because paper is nearby. Okay, so in this video we are going to talk about the silent features of Indus Valley civilization. Then we talk about some important sites and important findings which can be asked in exam. Then we'll talk about social, economic and political aspect, and then we'll talk about the decline of Harappan civilization. Okay, so if you like the video, please subscribe. तो सबसे पहले कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के बारे में. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर दैट दिस term Indus Valley civilization was coined by John Marshall, and Harappa was the first site to be excavated. Therefore, Indus Valley civilization is often referred to as the Harappan civilization. And Harappa जो excavate हुई वो 1921 में हुई, एंड दैट इज वाई जो फर्स्ट साइट थी उसी के नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया. ओके, देन मोहनजोदाड़ो वाज द सेकंड साइट टू बी एक्सकवेटेड, एंड इसको 1923 में एक्सकवेट किया गया. ओके, मोहनजोदाड़ो इज द लार्जेस्ट साइट बट in the region of Pakistan, not in the region of India. So Indus Valley civilization existed from 2500 BC to 1750 BC. This is a rough estimate. Okay, and by 1500 BC the Indus Valley civilization completely declines. Okay, so these are the facts which you should remember. Apart from it, there are some key names. For example, this is the name of a site, Harappa, and this is the name of an excavator or the आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस साइट को एक्सकेवेट किया या यहाँ पर खुदाई की. ठीक है, तो हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय डी.आर. साहनी, एंड Mohenjo-daro was excavated by R.D. Banerjee. Rakhigarhi was excavated by D.R. Shinde. Then Kalibangan was excavated by B.B. Lal, and Dholavira by R.S. Bist. Similarly, Lothal was excavated by S.R. Rao. So these are the important things which you should remember. And Lothal is a port city, so they can ask you like it was excavated by whom. Another thing is they can ask you Rakhigarhi was excavated by whom, because it is one of the largest site in the region of India. And Mohenjo-daro they can ask you because this is the largest site in the region of Pakistan, and Harappa was the first site to be discovered, so this name also become important. Of D.R. Sani name is also important. Okay, so now let us talk about the general features of the Indus Valley civilization. So it was primarily a urban civilization and it had modern characteristics. We'll talk about it कि कौन सी मॉडर्न करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट किया करती थी, बट फॉर अ टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि वो अर्बन और मॉडर्न फीचर्स जो थे वहाँ पर विजिबल थे. देन सिटीज ऑफ जो थी cities of Indus Valley civilization, that was divided into two parts. One was the upper part which is called as citadel, जिसको कि citadel बोलते हैं, और एक लोअर टाउन होता था जहाँ पे कि ऐसा माना जाता है कि वर्किंग क्लास जो थी वो लोअर टाउन में रहती थी, और जो इलीट थे यानी कि रूलिंग अथॉरिटीज़ जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे या जिनकी ऑक्यूपेशन हाई लेवल की थी, गवर्नमेंट के पार्ट थे, वो सीटाडेल यानी कि अपर पोर्शन में रहते थे. रोड्स वर वेल बिल्ट एंड दे बाइसेक्टेड ईच अदर एट 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में. एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड दे वर वेल अटैच टू हाउसेस. ओके, सो ये तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रोड्स जो थी वो वेल बिल्ट थी, बाइसेक्ट करती थी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे, एंड ड्रेनेज वॉज प्रॉपर, और वेल्स जो थे, कुएं थे, वो हर घर में एक प्राइवेट कुआं हुआ करता था. देन यूज ऑफ बर्न ब्रिक इज ऑल्सो देयर. स्टैंडर्डाइज रेशो की ब्रिक थी, और इसी से हमें पता लगता है कि एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी रही होगी जो ये सब चीज़ रेगुलेट करती होगी. अपार्ट फ्रॉम इट हमारे को सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी हाउसेस के एविडेंस भी मिले, विच शोज दैट देयर वाज अ सम काइंड ऑफ डिवीजन इन सोसाइटी. देयर वर रिच पीपल एंड देयर वर पुअर पीपल इन द सोसाइटी. सो जिनके पास डबल स्टोरी घर था, सो दे वर रिच. दोज हु हैड सिंगल स्टोरी हाउस, दे वर नॉट रिच, दे वर स्लाइटली पुअर. ओके, सो इससे पता लगता है कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन भी थी.
Then there are evidences of granaries, warehouses and craft production centers also. And इसमें आपको नाम थोड़े बहुत याद रखने हैं कि तो आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे कि ग्रेनरीज कहाँ से मिली हैं, वेयर हाउसेस कहाँ से मिले हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे चीज़ें मिली हैं क्योंकि ये स्टोर होते थे ग्रेन मतलब रखने के लिए, स्टोर हाउसेस की तरह होते थे। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स में चानूदारो जो रीजन है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एंड जहाँ से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, एज आई वाज टेलिंग यू। इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पा, ठीक है, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट साइट्स और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिले, सॉरी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट, डो नॉट मेमोराइज इट, सिंपली गो थ्रू इट एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, ठीक है। ज़्यादा इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। So let's move ahead, guys. So there is an important information, guys. We also have due beard mock test series, which is paid, and this is the structure of the test series. There are total 8 tests. 2 tests are full-fledged, then rest of the tests are the subject-based test. Okay, so this is the tentative structure. Questions might differ. Okay, so 100 questions probably होंगे, अगर नहीं होते हैं तो 80 questions तो होंगे ही होंगे। Okay, so you can join my group, the link is in the description, and you have to pay 250 rupees to get the paid test series, and you will get all paid tests, like 8 tests in rupees 250. Okay, so if you are interested, just click the link in the description and join the channel, or you can DM me also on the Telegram. So now let us talk about the social life in IBC. So as far as the social life is concerned, we have figured out these things through the excavations. Okay, so when we excavated, we found the ज्वेलरीज, ठीक है। तो ज्वेलरीज मिली, ज्वेलरीज में क्या क्या था, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट रिंग्स, जो कि मेन और वुमेन दोनों पहना करते थे, ठीक है। और जो मटेरियल यूज होता था, दैट वाज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक लैपिस लाजुली एंड जैस्पर, ठीक है। स्टेटाइट और टेराकोटा भी कुछ कुछ केसेस में यूज किया जाता था। Chanudaro and Lothal are some of the examples where these things were created. Okay, that's why I told you that it is an important center of craft production. So you have to remember the name of Chanudaro. Then culture और religion की बात करें तो people tree was important. How do we know it? क्योंकि seals जो है हड़प्पा की seals, उस पे ये सब चीज़ें हमारे को देखने को मिली हैं। Then swastik lingas and mother goddess statue, these kind of things were worshipped. Then the chief male deity was Pashupati, who is also known as Proto Shiva. That means the form of Shiva, like the early form of Shiva. Okay, present form of Shiva is like what? Shiva sits like a yogi and with a snake around the neck, with a trishul in the hand. Okay, so that is the modern form of Shiva, you can say, the contemporary form of Shiva. But Proto Shiva was something different, which sits in the yogic posture only, and this is a simple kind of figure, you can say. Okay, so that was Proto Shiva, which is called as Pashupati. So कल्चर और रिलीजन में ही जो और रिचुअल्स हैं, जैसे बरिंग द डेड was the part of their culture, and whenever they used to bury a dead, उनको ornaments और utensils के साथ दफन किया जाता था, क्योंकि it was a belief कि there is a life after death. Okay, and we have also found cemetery and some burial inside the house, which indicates that these people didn't had resources to bury their dead in the cemetery, and that's why they buried their deceased inside the houses only. And the statue of kings are also found. For example, you must have seen that bearded man, and that is called as a uh, priest king. Okay, so the statue of that person has been found. Secondly, the dancing girl statue has also been found, so that means these kind of crafts were known. Then terracotta toy model of bullock carts. These animals were also known and domesticated at shows. ठीक है, अगर bullock cart मिला है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि they were aware of such animals. Lions were not known. Lions का कोई evidence नहीं मिला है. Evidence of horses and rhinoceros जो है वो मिला है. Horses का evidence जो है इस पे बहुत controversy है, so do not get into it. Some books mention कि Surkotara is a place where horses के evidences have been found, but it is, you know,
still a matter of controversy, so do not get into that. But just remember, yes, some evidence of horses and rhinoceros have been found. And apart from it, another very important feature which I have highlighted is that people were literate. ठीक है, क्योंकि seals पे we have found a lot of symbols which is actually Harappan script. So people were literate and there are 400 plus signs which have been found. इसका मतलब 400 से भी ज़्यादा letters हुआ करते थे जो कि एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, तो ये सोशल लाइफ के बारे में था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक लाइफ. सो इन इकोनॉमिक लाइफ द इकोनॉमी वाज लार्जली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वाज द एग्रीकल्चर. और यहाँ पे दो क्रॉप सिस्टम हुआ करता था. पैडी वाज ग्रोन हेयर एंड अपार्ट फ्रॉम इट अदर क्रॉप्स लाइक wheat and barley, mustard, sesame, cotton were also grown. So you can remember the names of these crops. Then the domestication of goats, sheep, buffalo for dairy products was also common. Why? Because we have found the bones of these animals and these animals are generally used as a domestic animals. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी होंगी. इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स और एग्रीकल्चर में ही अलाइड एक्टिविटी दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट किया करता था. हमारे को कॉपर के एविडेंसेस मिले हैं. खेतरी का जो कॉपर है, खेतरी इज अ रीजन इन राजस्थान, खेतरी का जो कॉपर है वी हैव फाउंड इट्स एविडेंस इन द अदर रीजन. सो दैट मीन्स खेतरी से दूसरे रीजन्स में कॉपर को लाया जाता था एंड दिस शोज एन इंटरनल ट्रेड. देन एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम बात करें तो दैट इज विद मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया वाज अ सिविलाइजेशन व्हिच एग्जिस्टेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसके साथ ही एग्जिस्ट करती थी एंड दिस मेसोपोटामिया had a trading relations with Indus Valley Civilization. हम इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि कुछ कुछ जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं, टैबलेट्स हैं, दे टॉक अबाउट अ प्लेस कॉल्ड एज मेलुहा. ठीक है, और मेलुहा को जनरली ऐसा समझा जाता है कि इट इज another name of India in the Mesopotamian language. Okay, so this trade was done through ports and हमें और भी चीज़ें मिली हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ हड़प्पा की सील्स मिली है हमें. आई मीन आईवीसी की सील्स मिली हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में. सो इट शोज के वहाँ पर भी ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट किया करता था. ठीक है, सो गुड्स वर एक्सपोर्टेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स, टेराकोटा फिगरीन्स, कॉपर pots of iron, these were exported and seals were used बाय ट्रेडर्स टू कन्वे देयर आइडेंटिटी. ठीक है, ट्रेड जैसे सील पे कुछ नाम लिखा होता था कभी कभी और समटाइम्स द नेम ऑफ ट्रेडर, नेम ऑफ आइटम एक्सेट्रा वाज मेंशन. ठीक है, तो हमें सील्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मेसोपोटामिया में भी खुदाई करते हुए मिली हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव फिगर्ड आउट के ओके देयर वाज सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. Then craft production was an integral feature. टेराकोटा टॉयज वर मेड. दीज आर विजिबल इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली. अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन के टाइम मिले. एंड बीड्स टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड ये जो चानूदारो एंड लोथल है वंस अगेन emerges to be a very very important sites. देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमें क्लैरिटी नहीं है बट हमने एक अनुमान ज़रूर लगाया है. ठीक है, वी डोंट हैव अ क्लैरिटी बट वी हैव फिगर्ड आउट के हाउ was society governed. So statue of bearded man has been found, as I told you earlier, who is also known as the priest king, and it was similar to the priest king of Mesopotamia. So the three theories are there on the basis of political like aspect, and it is believed that one of the situation was true, and this point which I am telling you is as per NCERT. Okay, so फर्स्ट व्यू सेज दैट देयर वाज नो अथॉरिटी एट ऑल. ठीक है, पहला व्यू जो है वो ये कहता है कि कोई अथॉरिटी नहीं थी और लोग अपनी मर्जी से रहा करते थे, मतलब एनार्की थी. दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ईच रीजन हैज़ डिफरेंट रूलर. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि कितनी सारी जो रीजन्स है वो एग्जिस्ट करते हैं. हड़प्पा की स्टेट एग्जिस्ट करती है, मोहनजोदाड़ो एग्जिस्ट करती है, राखीगढ़ी एग्जिस्ट करती है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं. तो ऐसा माना जाता है कि हर रीजन अलग अलग रूलर के द्वारा रूल किया जाता था, बट इस पे भी ज़्यादा लोग एग्री नहीं करते. अनदर इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. इस पे मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री करते हैं बिकॉज आप देखोगे कि ब्रिक्स में स्टैंडर्डाइज रेशो है. टाउन प्लानिंग जो है वो एकदम प्रॉपर है मोस्ट ऑफ द टाउन्स में.
अपर टाउन और लोअर टाउन में डिवीजन है मोस्ट ऑफ द टाउन्स में। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर सब चीज़ें यूनिफॉर्म है तो देयर वाज सम सेंट्रल अथॉरिटी विच वाज रेगुलेटिंग इट। ओके, then citadel was there in which large building existed and it indicate the existence of elite that might be the part of ruling classes, ठीक है। तो these are some political aspects which you have to remember, and out of 3 points which I told you, the last point, that is a centralized authority wala point, seems most appropriate. Now let us talk about the causes of decline, then we will end the video. So this end is marked by the disappearance of distinctive artifacts and migration of population. ओके, जो आप खुदाई करते हैं तो कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर होने लगते हैं। ओके, लेयर्स में एक्सकवेशंस होती हैं एंड उससे पता लगता है कि ओके इस लेयर में इतना मटेरियल मिला है, इस लेयर में इतना मटेरियल मिला है, तो उससे दे आइडेंटिफाई। ओके, सो वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिक्लाइन, बट कुछ कुछ कॉजेस जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताए हैं उनमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज हो चुका था इस टाइम तक, डिफॉरेस्टेशन हुई, एक्सेसिव फ्लड्स आए और अर्थक्वेक्स भी आए जिसकी वजह से डिवेस्टेशन हुई। उसके बाद चेंज ऑफ कोर्स ऑफ इंडस रिवर, कि इंडस रिवर का जो कोर्स था वो टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो दैट्स वाई द दिस थिंग हैपेंड, क्योंकि रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया तो इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आने लगी और कभी कभी फ्लड आ जाता था, सो इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अनदर इज आर्यन इन्वेजन, ठीक है, जिस के एविडेंसेस हमें माउंट ऑफ द डेड से मिलते हैं जहाँ पर कि 16 स्केलेटन्स पर फाउंड जो कि मास स्लॉटर डिपिक्ट करते हैं, बट हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता क्योंकि हमें हड़प्पा की तरफ से कोई वेपन्स वगैरह ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं, ठीक है। तो अब माउंट ऑफ द डेड भी एक कंट्रोवर्सी है, सो यू डोंट गेट इनटू दैट, बट जस्ट रिमेंबर ओके दीज वर द ब्रॉडर कॉजेज विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फिगर्ड आउट। ओके, सो इतना बड़ा सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसका एक कोई फैक्टर तो डिक्लाइन का हो नहीं सकता, देयर मस्ट हैव बीन मल्टीपल फैक्टर्स, so that's why we consider all these three factors as a cause of decline, you can say. Okay, so this is all for this particular video guys, thank you for watching.